Now, the house is open for Q&As, so please, आप जिनको भी question पूछना है, please point and shoot. Yes, sir को या तो mic दे दो या तो sir both the judges के लिए question. Sorry, can we get him a mic, please? My question to both the judges is, you both belong to prominent film families. So is that an added advantage while judging the show? And what qualities would you see in a good dramebaz? Sorry, we didn't get it. Sorry. Both of you belong to good prominent film families. So is that an added advantage while judging this show? And what qualities would you see in a good dramebaz? See, we have our benefits because he has a lineage of, his parents are part of the film industry. Yes, it helps us. My parents were from Pune Institute, acting, they've done the course. So yes, it's in my blood also. It helps us because when you're seeing a talent, you should be able to judge them and bring out the qualities that you feel are right, and we can nurture them. So being an actor and being a director, and maybe I used to act before, so it helps us to see and, what is the quality that is different from the other kids. So we pinpoint and we take that out, and it does help us. I think aside from the experience of being a part of the industry, he's been a part of the industry for more than 25 years. I've been a part of the industry 16 years. We get an assessment, a general assessment कि बच्चे कैसे perform करें, इनमें क्या talent है और क्या possible spark इनमें निकल सकता है. There's no fixed format. It's also intuitive and something guides you. So that helps in judging. But I think what helps the most, to answer your question most specifically, is that throughout the process, you can't imagine the fun we have. As judges, we enjoy every moment of seeing, creativity. It's like seeing, when you plant a seed and you see the first sapling grow. वो पहली जो छोटी मर्म बिल्कुल जो पत्ते दिखते हैं आपको, and you start to get that joy, that sense of growth, that sense of a journey, that is unbeatable. And then that stays with you in your heart. So many of these bachas have gone on to achieve so much in life. But every time we see them anywhere, whether we meet them or not, there's a sense of pride and a bond, a certain love that you share for them. Let me take that because I think this is Umang's first season, but I can speak for Sonali and for me and the entire Z family. So my experience over these years has been India's Best Dramebaz mein, we go out of the way firstly to make sure that the children are having fun. सबसे ज़्यादा तो हम उनको लाड़ देते हैं. In fact, वो हमारे set से जाना ही नहीं चाहते हैं. They want to just stay there, have fun. Parents को बोलना पड़ता है, चलो, जाना है. The other thing is that it's very structured in terms of timings. It's very structured in terms of how much time they have to give so that they get their rest, they get their sleep. ये बच्चों की बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी growth के लिए at this stage. And the third thing is that हमारे बच्चे ना, अगर आप देखो last season में भी, if you go and watch the finale episode, जो बच्चे choose हो रहे हैं और जो बच्चे eliminate हो रहे हैं, eliminate हुए बच्चे रो नहीं रहे हैं. जो चूज हो रहे हैं वो उनके लिए रो रहे हैं जो एलिमिनेट हुए. There's no sense of man eat man which happens in the real world. The pressure comes from what I have to be better than him, he has to be better than me. हमारे यहाँ it's such an amazing bond of family. They're happy for each other, they love each other, they support each other, and to see that blossom, and to send that out into the real world as an alternative model कि ऐसा भी हो सकता है. I think that's something we at IBD take great pride in. उमंग कुमार जी, आप 25 सालों के बाद वापसी कर रहे हैं. Sorry. आप कम बैक कर रहे हैं 25 सालों के बाद. तो मेरी कॉम से पहले जो 20-22 साल का गैप था, ये आप किधर थे इतना टाइम? सर 20-22 साल पहले? मेरी कॉम से पहले जो 20-22 साल का गैप था, आप कहाँ थे आप इतना टाइम? कहाँ था मैं पैदा हुआ था तब, बट नहीं देखो, माय कॉलेज लाइफ तो अलग था. कॉलेज लाइफ मतलब पहले थिएटर से ही स्टार्ट किया था मैंने, तो एक्टिंग मतलब मैं बोल सकता हूँ कि माय मम एंड डैड ने जो
स्टार्ट मेरे में करा था तो बचपन से किया था, तो मैं ड्रामा परफॉर्म करते करते ही आया और बड़ा हुआ हूँ। और जब कॉलेज के बाद 1 मिनट जब मिला मुझे, तो 2 राह थी मेरे पास, एक तो होस्टिंग करने की और दूसरी सेट डिज़ाइन करने के लिए। तो साथ में चलते गए, 3 एडवर्टाइजिंग भी साथ में चल रहा था, होस्टिंग भी चल रहा था एंड सेट्स भी चल रहा था। तो करते करते मैं पहुंच गया ड्रामा मतलब डायरेक्शन में। डायरेक्शन करते करते इन्होंने बुलाया मुझे जज करने के लिए, बस ये मेरी जर्नी है। पर जब भी जहाँ गया हूँ तो मज़ा करते आया हूँ एंड फिल्मों में नहीं जा पाया, एक्टर नहीं बन पाया, तो डायरेक्टर बन गया, सॉरी। पर पूरी कसर अब निकाल रहे हैं। हाँ हमारे मंच पर पूरी कसर निकाल रहे हैं। पर जो 1 मिनट में कर रहा था, लगता है मुझे वापस आज भी वही कर रहा हूँ, तो लेकिन जज बन के कर रहा हूँ, बस मजा कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। Should we allow someone else to have a question? Yeah, but nobody's asking. Say what? I think we're just, brothers, and it's telepathic. I think it, he feels it, he says it, I say it, it happens, it's like magic timing. We're Karan Arjun on the show. We look at different aspects of how we choose a person. I would be looking at the directorial part, if I have to direct him, कैसे मैं present करूँगा और कैसे चुनूँगा वो बच्चों को. He will be seeing the more of acting oriented. मैं पूरा पैकेज ढूंढता हूँ. Like उसमें stage presence है क्या, perform कर सकता है क्या, and सोनाली बेंद्रे जी sees the realism. तो हम तीनों के अलग अलग पहलू हैं, हम कैसे चूज करते हैं, लेकिन फाइनली वी कम ऑन टू द सेम पेज, देखते हैं एक दूसरे को, इसमें स्पार्क है कि नहीं है, ये कहीं पहुंच पाएगा नहीं, तो एक नॉड में समझ जाते हैं कि इसमें है, ये पिकअप करना ही है। कभी आपस में वो भी हो जाता है, हाँ, नहीं मैं अड़ जाता हूँ या तो सोनाली जी अड़ जाते हैं, वो भी हो जाता है। और फिर एक दूसरे को चैलेंज भी देते हैं, भाई मैं प्रूव कर पाऊंगा, देख ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये कुछ ना कुछ तो कर पाएगा, मैं चैलेंज देता हूँ, और वहीं बोलता हूँ कि मैं इसको पिक्चर में लेता हूँ, अब तू करके दिखा कुछ। तो वो झगड़ा होता है, लेकिन यस भी अब सीजन लंबा है, देखते हैं आगे क्या होता है। Hello, Vivek. Yeah, hi. Being a doting father to your kids in real life, to what extent does it help you to connect with the kids when they are, performing and once they are done with their act? I've always had I've always had this deep connect with kids. I've always loved kids. I've been the favorite bhaiya, the favorite chacha, mama, all of that in my house. Yeah, I've been the fun guy. So and it's easy for me to connect. Being a father actually takes it to a deeper level. Like for example, अभी season में एक बच्चा perform कर रहा था, और मुझे एक sense लगा कि इस बच्चे पे कोई बहुत ज़्यादा pressure है, क्योंकि वो सिर्फ 10 साल का है, लेकिन उसकी आंखें ऐसे लग रही थी कि वो 25 साल का हो गया है. So I actually went and spoke after his performance to his parents backstage, and I said कि यार आप इस पे pressure तो नहीं डाल रहे? Are you looking at doing this from a perspective कि इससे कमाएगा? Because that's not what we want on our show. हम चाहते हैं कि बच्चों का talent जो है, उसको हम तराशें, उभारें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि कितने talented बच्चे हमारे देश में हैं. So ours is not to create a factory कि ये model हमने निकाला है, अब इसके ऊपर आप पैसे छापो. That is not the endeavor at all. And that is not the ZTV as a channel also has never had that moral fiber, that ethic to look at it from that perspective. They've always been more of a family than more of a commercial understanding. So that's the difference that has happened since I become a father. Now there's more concern. पहले मैं मस्ती करता था, खेलता था, I used to be बच्चा, उनके साथ में बच्चा बन जाता था और move on कर जाता था. But now there's a more sense of concern कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, what's happening in their personal lives, and how we can impact even that positively while they're there with us. Any dramebaz moment you remember in your childhood जिससे कि कुछ हंगामा हो गया था and you got a response, मतलब spontaneous ड्रामेबाजी का कोई moment in your real life? Bro, मैं अपनी ड्रामेबाजी की कहानियां सुनाऊंगा तो उमंग उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिख के फिल्म बना देगा, इतने सारे हैं. But it's interesting to see that that's happening in the next generation. Like normally yesterday was Sunday. After a long time I got a break. And Sunday की बारिश enjoy करने के लिए मेरा एक बहुत प्यारा सा ceramic mug है. उस mug में मैं अपनी चाय डाल के अपने घर के terrace के ऊपर enjoy करता हूँ, and I like to see the rain falling. Just relax there. अब मेरा बेटा है, उसके लिए उसके डैडा उसके हीरो भी हैं, तो उसको वो सब करना है जो डैडा करते हैं. तो मैं गया कहीं 2 मिनट के लिए, भाई साहब मेरी कुर्सी में बैठे, मेरी मग उठाए
और मग को गिरा के तोड़ दिया। अब तोड़ा, मैं वापस आया और मैंने कहा विवान ये कैसे टूटा, किसने तोड़ा? तो मुझे ऐसे ऐसे देख के बोलता है डैडा वो एक बहुत बड़ा कौवा है ना, वो जो आके वो पेड़ पे बैठता है, वो आया था चाय पीने, आप गए, वो चाय पीने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको शू किया और उसने चाय का मग गिरा भी दिया। तो उसने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी और मैं देख रहा हूं अच्छा वो कौवे का नाम विवान तो नहीं था, और वो मुझे कह रहा है कौवे का नाम तो कौवा होता है, विवान थोड़ी हो सकता है, और हंस रहा है मुझ पे। सो वो ड्रामेबाजी कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल में पास डाउन हो रही है, बट आई एंजॉय इट यार, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू सी दैट। हेलो सर, उमंग सर, मेरा सवाल आपसे है। सो यू हैव डायरेक्टेड युवा एंड अदर मूवी मैरी कॉम सर। युवा, मैरी कॉम, सरबजीत, सरबजीत, yes, sir. So both the movies were like inspirational movie थी। अब आप बच्चों के साथ जज कर रहे हो, right? तो how difficult was that for judging you, and how much help you took from Vivek ji and Sonali ji for judging? Obviously they have more experience than me, and ये पहला season है मुझे जज करना, and movie making is easier than judging this show, मैं ये कह सकता हूँ, because जो ड्रामेबाज मिले हैं हमें, एंड एक से बढ़कर एक है, एंड मुझे लगता है कि वहाँ तो डायरेक्शन करना मतलब माहिर एक्टर से काम निकालना है, वो इजीली हो जाता है। यहाँ एक एक जो कैरेक्टर आ रहे हैं स्टेज पर और परफॉर्म कर रहे हैं इज अनबिलीवेबल। लाइक मैंने पहले भी कहा, एक एक टेक में कर देते हैं, तो ये डिफिकल्ट लगता है कि मैं उनको जाने दूं या सिलेक्ट कर लूं। 140 पीपल में से 16 जन को सिलेक्ट करना है, बहुत डिफिकल्ट था। तो ये टास्क ऑब्वियसली एक्सपीरियंस थे ये लोग, इसलिए मुझे बार बार ऐसे देखना था कि एम आई लाइकिंग इट और यू ऑल्सो लाइकिंग इट। मुझे तो हर बच्चा अच्छा लग रहा है यार, नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। अच्छा, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, सो ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं थोड़ा बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, ये पिघल जाता है 2 मिनट के लिए, हर 5 बच्चों के बाद बोलते नहीं नहीं अब मैं स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ, अब देख लेना, वॉच मी, आई एम गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट। फिर उमंग वापस ऐसे दिखता है, बोलता है अरे यार ये इतना प्यारा बच्चा है, इसको कैसे एलिमिनेट करें। It's like that. ये लोग 2 सीजन से करते हैं, बोला नहीं नहीं, you will have more difficulty. I said no no, I'm going to be very strict. And then I can vouch like you people can't say no to the talent that is there. It's like I would have taken all 140 because they are the future. But हमको लेना पड़ा, I'm only 16. But बाकी लोगों को बोला आप 2 साल के बाद में आओ, कहीं को तो मैंने भी बोला कि आपको फिल्म में काम दे दूंगा, because I just couldn't say no to them. And the talent that we have on this show is out of this world. And I think it was very difficult for me to judge this show. Very very difficult. ये ऑडिशन भी करते हैं जब बच्चों के कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जब मेरे फिल्म्स के लिए या शोज के लिए बच्चों की कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम भी देखते हैं, बच्चों के ऑडिशन टेप्स हमारे पास आते हैं, तो हमें एक बेसिक आइडिया है कि बच्चे किस तरह से परफॉर्म करते हैं देश में। और जो हमारे ये बच्चे हैं उनमें बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है कि वो ऑडिशन भी बढ़िया करते हैं, मतलब परफॉर्मर बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन एक इनोसेंस अभी भी है उन बच्चों में। वो अभी उनका वो एक, जैसे मैं कहता हूँ ना, कमर्शियलाइजेशन वो नहीं हुआ है अभी भी। वो उनको इस मंच से प्यार है, इसीलिए उस मंच पे हैं, और वो प्यारापन जो है ना वो बड़ा आपको मोहित कर देता है। यू जस्ट वांट टू कीप वाचिंग देम, दे आर सो क्यूट एंड बिल्कुल दिल से परफॉर्म करते हैं। वैसे क्यूट से याद है, आप भी बड़े क्यूट लग रहे हैं, झंडे को डंडे की तरह पकड़ के, डंडे को झंडे की तरह पकड़ के। सर ऐसा कैप्चर वैप्चर मत करना, मुझे मेरी बीवी के पास जाना है घर वापस। हेलो सर, उमंग कुमार जी। यस सर। उमंग कुमार जी, मेरा एक आसान सा सवाल है। आसान सा? जी जी, ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है? बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है, ये थोड़ा आप मेरे को दुविधा में डाल रहे हो। हाँ हाँ, आपको पता है ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, दैट्स व्हाई आपने पूछा है। बट सभी ड्रामेबाज है, एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज है। हर फ्राइडे को एक ड्रामेबाज निकलता है और उसकी कीमत जांची जाती है। नेक्स्ट फ्राइडे दूसरा ड्रामेबाज है। मुझे लगता है सबसे बड़ा तो यहीं बैठा हुआ है, सबसे बड़ा ड्रामेबाज यह है। मैं इसका फैन रह चुका हूँ फ्रॉम लाइक युवा डेज एंड मस्ती डेज एंड क्या क्या काम। सर आप मेरे फैन हो, मैं आपका एसी हूँ। अरे रे, देखा, ये कहते हैं, इसको कहते हैं ड्रामेबाज। हेलो यार इसकी ना अभी से ऑडिशन चल रही है उमंग की अगले पिक्चर की। आई वोंट बी सरप्राइज्ड। हाँ सॉरी, बोलिए। दीपक सर, आपसे क्वेश्चन है, ड्रामेबाज सीजन 1, 2 काफी सक्सेसफुल रहा, तो थर्ड में क्या अलग और क्या नया देखने को मिलेगा दर्शकों को? अलग अलग अलग
यार नॉर्मली ना, सॉरी सर, नॉर्मली ना ये जो फिल्म मीडियम है ना, ये फिल्म हो टेलीविजन हो, ये डायरेक्टर्स का मीडियम है, तो ये हम एक्टरों को जब चाहे बदल देते हैं। लेकिन ये ड्रामेबाजी का मंच है, तो यहां हम एक्टर डायरेक्टर्स को बदलते रहते हैं। हमने जैसे बताया, हम इस शो में अनसंग हीरोज को सैल्यूट करने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा टेकआउट होगा ऑडियंस के लिए, क्योंकि इस शो से ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, लेकिन ये एक एज अ सरप्राइज इट विल कम इन द शो, जहाँ पर बच्चे समझ के, ऑब्जर्व करके और अपनी जो इमोशंस है वो उसमें डालकर जो एक्ट्स तैयार करेंगे और उन अनसंग हीरोज को सैल्यूट करेंगे, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैसेजिंग। हम कितना भी कहें कि एक ऑडियो विजुअल दिखाएं और उनको कहें कि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे ये बच्चा, ये छोटे अब्दुल कलाम कहलाते हैं, उनको वो अवार्ड मिला है। अब इनके बारे में हम उनको बताएंगे और वो खुद उनकी जानकारी हासिल करके, ऑफ कोर्स उनको मदद की जाएगी, लेकिन वो जब खुद उनकी जानकारी लेंगे और उसके ऊपर एक एक्ट तैयार करेंगे और जब वो प्रेजेंट करेंगे, आई थिंक इट्स अ डिफरेंट मैसेज। अब इसमें एक फर्क ऐसा है, बहुत बड़े चित्रकार हो चुके हैं MF हुसैन साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक 5 साल का बच्चा अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहा है और एक 20 साल का बच्चा एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, उन दो लाइंस में बहुत पार की नजर को वो फर्क समझ में आता है। 5 साल के बच्चे की लाइन अगर स्ट्रेट भी हो, फिर भी उसमें एक इनोसेंस है, वो समझ में आता है, उसका माइंड अभी तक कंडीशनड हुआ नहीं है। और उस उम्र में इस तरीके के संस्कार अगर इस शो के माध्यम से, इस शो के जरिए जी टीवी की ओर से अगर हम पहुंचा पाए, आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी इस शो की। ये छोटी चीज है, लेकिन वो इम्पैक्ट के लेवल पे बहुत बड़ी है। उमंग जी नए हैं, हमारे एंकर नए हैं, हमारे ये जो हमने पद्मावती देखा आपने, वो नया है, तो मजा मस्ती सब कुछ है, लेकिन इस सब का फोकस यही है कि आज की जनरेशन के जो छोटे बच्चे हैं, वो सिर्फ उम्र से छोटे हैं लेकिन उनकी समझ काफी बड़ी है। और जी टीवी ने हरदम ये काम किया है। जी टीवी इज नोन एज अ स्कूल। जी टीवी ने अपने स्टार्स खुद क्रिएट किए हुए हैं। अब से इस उम्र से अगर उनको एक्टिंग के संस्कार इतने एक्सपर्ट से अगर मिलते हैं, आगे जाकर उनकी एक्टिंग का पोटेंशियल डेवलप होने में उनको बहुत बड़ी मदद होगी। और इन 3 जूरीज के साथ जो एक्सपीरियंस है अपने अपने क्षेत्र में, बहुत बड़ा फायदा होता है, बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। बस हमारा यही कहना है, हमारा सिर्फ एक मंच है, हमारे मंच पे एक्सपर्ट्स है, टैलेंट है, वो एक दूसरे से जुड़ जाए, अपने दर्शकों को जुड़ जाए, बस हमारा इतना ही काम है। थैंक यू। हेलो, मेरा क्वेश्चन विवेक सर से है कि आपने अभी अपने बेटे के बारे में अभी कुछ चीज़ें शेयर की थी। अगर व्हाट इफ आगे चल के आपका बेटा अगर किसी रियलिटी शो में पार्ट लेने के लिए इंसिस्ट करता है, तो आप कितना इस चीज़ को बढ़ावा देंगे और कैसे देखेंगे? यार मुझे लगता है कि रियलिटी शोज में जाना या फिल्म एक्टर बनना या ना बनना, जैसे मेरे जीवन में मुझ पे कभी कोई प्रेशर किसी ने नहीं दिया। मेरे पापा ने, मम्मी ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा तुम्हें बड़े होके ये बनना है या फलाना करना है या ढिमकाना करना है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया और मेरे हर सपने को अपनाया। तो मेरा सपना हर साल बदलता था। अब एक साल मुझे साइंटिस्ट बनना है, एक साल मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, एक साल मुझे कुछ और बनना था। मुझे अभी भी याद है बहुत सारी चीज़ें मैं सोचता था कि मुझे ये करना है, वो करना है। मेरा जो एक्सपीरियंस था स्टेज पे जाने के बाद पहली बार, और मुझे जो मज़ा आया और मुझे लगा कि मुझे थिएटर करना है, उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और थिएटर से जब ट्रांजिशन फिल्म के लिए मैं अंदर से तैयार हुआ, तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मुझे लगा ये बहुत एक गुड पेरेंटिंग का तरीका है। बच्चों पे अगर आप पहले से ही प्रेशर डाल देते हो, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि मेरा कोई सपना है, मेरा बेटा पूरा करेगा या मेरी बेटी पूरी करेगी, तो आई थिंक वो चीज़ बहुत प्रेशर दे देती है बच्चों पे। तो मैं अपने बच्चे पे बिना प्रेशर डाले जो उसका सपना हो उसे 100% पूरी करने की कोशिश करूंगा और उसे सपोर्ट करूंगा। देखिए, विवेक जी ने खुद अभी एक एग्जांपल दिया कि एक बच्चे का परफॉर्मेंस देखा, लेकिन 10 साल का बच्चा, उसकी आंखों से लग रहा था वो 25 साल का हो गया। मुझे बहुत गर्व है कि हम ऐसे एक्सपर्ट्स इस तरीके से चैनल से, बच्चों से और उस शो से जुड़े हुए हैं,
जो खुद कहते हैं बच्चों के पेरेंट्स को कि आप उनको प्रेशराइज मत कीजिए, वो जैसे खिल के आ रहे हैं उनको खिलने दीजिए। उनकी ये उम्र है कि उनको ये एक्सपोजर मिलना चाहिए, वो आगे जाकर अच्छा ही काम करेंगे, लेकिन आप प्रेशराइज मत कीजिए। आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड दिस इज जी टीवी, दिस इज व्हाट वी कनेक्ट टू। आपने पूछा विवेक जी और उमंग जी के बारे में, कोऑर्डिनेशन का एक सवाल था। आई थिंक इट इज जस्ट अबाउट अ कनेक्शन, दे आर कनेक्टेड। तो एक दूसरे के पास मतलब उन्होंने कहा इन्होंने कहा, बात एक ही हो जाती है, ये कनेक्शन है एंड दिस इज अ सोल कनेक्शन। और विवेक जी और सोनाली जी तो पहले सीजन से इस शो से जुड़े हुए हैं, उनका सोल है इसमें। आपने देखा अभी मतलब जो चल रहा था वो नाटक नहीं चल रहा था, उनका जो कनेक्शन है बच्चों के साथ या उमंग जी का भी, वो बहुत प्योर है, वेरी प्योर, वेरी ओरिजिनल। तो ये बहुत काम करता है, क्योंकि ये सिर्फ जूरीज नहीं है, ये उनके पेरेंट्स है, और ये सिर्फ ऑनर पेरेंट्स नहीं है, वो अंदर से जुड़ गए। एंड दैट्स अ बिग थिंग ऑफ दिस शो। बाकी शो चलता है नहीं चलता है डजंट मैटर, थैंक यू सो ये मच। शो बहुत इंटैक्ट होता है, ये वैल्यू प्रोपोजिशन Thank जब you. अंदर से आता है वो इंटैक्ट रहता है। थैंक यू। थैंक यू, नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट उन्होंने जो कहा। ये मैं कहना चाहूंगा अपने जी परिवार के लिए, मेरा जो अनुभव रहा है पिछले इतने सालों में, 3 सीजन्स में, आज तक हमारे सेट पे कभी टीआरपी की डिस्कशन नहीं होती है कि भाई शो की रेटिंग क्या हुई है, पिछले एपिसोड ने कितना रेटिंग किया है, इसकी रेटिंग बढ़ाया कैसे जाए, या प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही। आज तक सबने यही बात की है कि शो की क्वालिटी, एक्ट्स कैसे लगे, एक्ट्स के जो माध्यम से हम मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें। जैसे आज आपने इस छोटी सी बिटिया का एक्ट देखा जो टिकली टिकली करके बेच रही थी। जब मैंने इसका एक्ट ऑडिशन में देखा तो मैं इतना इंप्रेस हुआ कि भारतीय संस्कृति और उस संस्कृति के पीछे जो साइंस है, हम बिंदी लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, ये साइंस हमें पता ही नहीं है। हम लगाते हैं क्योंकि भाई लगाते हैं, हमारी माँ भी लगाती थी, हमारी दादी भी लगाती, तो हम लगाते हैं। बट इसके पीछे साइंटिफिक वैल्यू क्या है, वो जब इसके एक्ट के जरिए से आप एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से हंसते खेलते देख रहे हो और सीख रहे हो, तो ये जो संस्कृति हमारी लुप्त हो रही है, जो हम इसे गवा रहे हैं, उस संस्कृति को वापस जागृत करने का काम जी इस मंच से कर रहा है। एंड आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। थैंक यू जी। विवेक जी, सॉरी मैं समझ नहीं सुन नहीं पा रहा हूं। सर एक तो इन सब के पास उतना टाइम अवेलेबल है क्या, ये पूछ लीजिए। अभी आप अपने सामने ही पूछ लीजिए, क्या शुड वी गो विद। इसका टेक्निकल, ये मस्ती कर रहे हैं। इसका टेक्निकल आंसर ये है कि बच्चों को समय लगता है प्रिपेयर करने के लिए। जो आप देखते हैं ना, आपने एक वीक में देखा उनका परफॉर्मेंस, फिर हमने उनको अपनी एडवाइस दी कि बेटा आपको ये करना है, ये बेटर होना चाहिए था, आप अगले परफॉर्मेंस में इसमें अटेम्प्ट कीजिए, इस तरह से ट्राई कीजिए। फिर वो एक हफ्ता हमारे जो मेंटोर्स हैं वो उनके साथ काम करते हैं, जजेस के कमेंट्स को लिखते हैं वो, फिर एक एक बच्चे के लिए स्पेसिफिकली क्या कमेंट्स आए हैं, कहाँ वीक है, कहाँ इंप्रूवमेंट है, किस जगह सराहा है। कभी हम ये भी करते हैं, हम सराहते हैं, बोलते हैं ड्रामेटिक आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बट मैं चाह रहा हूं कि आपकी कॉमिक टाइमिंग में देखना चाहता हूं। तो उसमें फिर उनको वापस एक हफ्ता लगता है तैयार करने में, फिर हम वापस आते हैं और फिर उनका परफॉर्मेंस देखते हैं, और उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो जर्नी है, उसे हम उस तरह से मेजर करते हैं। वो डेली प्रोसेस में इम्पॉसिबल है करना। मैं इसका आंसर देता हूं। अगर मैं प्रोड्यूसर होता, काम डेली चलता है। अगर मैं प्रोड्यूसर